کورٹ نے ان کے خلاف جو دہشت گردی کی دفعات تھی اس کو خارج کر کے جو دیگر دفعات ہیں اس پہ کیس چلانے کا حکم دیا ہے، اس پہ کوئی آپ کومنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ان پہ جو بھی دفعہ لگے، چاہے وہ دہشت گردی کی ہو یا وہ توہین عدالت کی ہو یا وہ ایک جج کو للکارنے کی ہو، اس کو ڈرانے کی ہو، اس کو دھمکانے کی ہو، ان پر جو بھی دفعہ لگائی جائے وہ ہر دفعہ میں کنوکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ پوری دنیا کے سامنے کر چکے ہیں۔ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک بلی ہے اور اس نے طریقہ یہ اپنایا ہوا ہے کہ جہاں پر اس کے اوپر مشکل آتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو للکارو، اس کو دھمکاؤ، اس کو ڈراؤ اور اپنا راستہ صاف کرو۔ تو یہ چیز عدالتوں کو ڈسکریج کرنی چاہیے، کیونکہ نہ یہ ملک کے لیے اچھی ہے، نہ یہ ملک کے مستقبل کے لیے اچھی ہے، نہ یہ قوم کے لیے اچھی ہے، نہ یہ اداروں کے لیے اچھی ہے۔ میڈم یہ بتائیے، عمران خان اور مسٹر ایکس اور وائی کی بات کر رہے ہیں، ان کی بیانی میں پھر ایک ایگریشن آ گیا، کیا میاں صاحب کی طرح یہ ایگریشن کچھ مفاہمت کے تحت ختم ہو جائے گا یا رہے گا؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ چکوال گئے تھے کل، آپ نے کہا کہ چکوال میں کھڑے ہو کر ان کو آرمی چیف کی تعیناتی بڑے یاد آئی، تو پھر بے چینی بھی لگی، فرسٹریشن بھی دکھائی دی عمران خان صاحب کی، تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ چکوال پہنچے تو پھر وہ جو خاموشی اختیار کی تھی وہ دوبارہ جو ہے اس میں تیزی آ گئی؟ تو یہ چکوال کی زمین کا کوئی پانی تھا اس قسم کا جس وجہ سے ان کو آرمی چیف کی تعیناتی بڑے زور سے یاد آئی ہے؟ نہیں، وہ زمین کا پانی نہیں ہے، وہ کچھ ایسے لوگ جو ان کے سٹیج پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ والا نیکسس ہے، اور میں نے کل اپنی ٹویٹ میں وہ کہہ بھی دیا تھا۔ لیکن دیکھیں، چکوال کے جلسے کے اندر کچھ باتیں بہت پرومیننٹ تھیں۔ میں عمران خان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں بالکل سمجھتی ہوں کہ وہ نان ایشو ہے، وہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہمیں سب کو ڈسکارڈ کر کے پاکستان کے ریئل ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ہاؤ ایور وہ بہروپیے کی جو منافقت ہے نا، اس کو پاکستان کی قوم کے سامنے ایکسپوز کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو کل میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی، میں اس عذاب سے، ان کی جو تقریر ہے اس کو سننے کے عذاب سے گزرنا پسند نہیں کرتی، لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ وہ انہوں نے ابھی جو فرمایا کہ مسٹر ایکس، مسٹر وائی، خوف کے بت توڑ دو، کیا اپنے لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ خوف کے بت توڑ دو اور غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ، اگر یہ تمہیں ڈرائیں تو تم ان کو ڈراؤ، تو یہ تمہیں دھمکائیں تو تم ان کو دھمکاؤ۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میں وہاں سامنے کھڑی ہوتی تو میں یہ سوال کرتی کہ آپ کے اندر خود ان لینے کی ہمت نہیں ہے، آپ کی ٹانگیں تھر تھر کانپتی ہیں، آپ کہتے ہیں مسٹر ایکس، مسٹر وائی، اگر آپ کے اندر نام لینے کی ہمت نہیں ہے تو قوم کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ وہ ان کو للکارے، ان کو ڈرائے، ان کو دھمکائے؟ مریم آپ کے دور میں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں، ایک اور بات بھی دیکھیں، انہوں نے کہا کہ یہ خبریں ٹی وی پہ آئیں کہ انہوں نے اس چیز سے ان کو برا لگا یہ کہ ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں اور وہ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ تو میں تو پہلے سب سے یہ پوچھوں گی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بتا کے ملاقاتیں ہوں، تو آپ نے کبھی پارٹی کو بتایا کہ آپ کس کس سے خفیہ ملتے اور کیا کیا باتیں کرتے؟ جب دھرنے میں لوگوں کو آپ نے 2014 کے بعد جو دھرنا تھا اس میں آپ نے لوگوں کو کہا کہ انگلی اٹھنے لگی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ہم آزادی کے لیے آئے ہیں، اور جنرل رحیل شریف نے بلایا تو ہنستے ہنستے نکل گئے۔ وہ دھرنے کے لوگوں کو بتا کے گئے تھے کہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اور میں خود کہاں رات کو چھپ کے کس کے پاس اندھیرے میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اپنی پارٹی سے آپ وہی بات کریں جو آپ خود کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جلسوں میں کھڑے ہو کے آپ کسی کو للکاریں اور رات کے اندھیرے میں آپ اگلوں کے پاؤں پڑ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مریم آپ کے دور میں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی جگہ خلائی مخلوق اور محکمہ زراعت کے نام لیے جاتے تھے، اور آپ نے بھی تو آپ کی حکومت کیا ان ٹیلی فون کالوں کے حوالے سے کوئی تحقیقات کروانا چاہے گی؟ بھئی ہم نے تو ثبوت دیے، نام بھی لیے، ثبوت بھی دیے، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کبھی بہت وہ بھی ہوتا ہے، انسان کو خیال تو آتا ہے کہ کل جو کالز کروا رہا تھا، کل جو یہ ساری اکھاڑ پچھاڑ کرا رہا تھا، آج اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ آج کہہ رہے ہیں میرے ممبرز کو کالز آ رہی ہیں اور یہ کالز کو منع کر دو۔ اور جب ہم لوگوں کو کالز کراتے تھے تب ہمیں تو آتی تھی کالز، ہمیں تو دھمکیاں بھی آتی تھی، لیکن ہم نے فیس کیا۔ 2 مہینے بعد ہمارا انقلاب فوت نہیں ہو گیا۔ اب ان کالوں کی تردید کر رہی ہیں آپ کی حکومت؟ بھئی میں تو یہ بالکل ہے، تو ثبوت لے آؤ سامنے۔ یہ
पढ़नी शुरू कर देते हो, है तो सबूत ले आओ ना। पंजाब में कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद की तैयारी है आप ला रही है, क्योंकि तैयारी की दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पर इंतहाई शहनशान तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है, इसकी बुनियादी वजूहत क्या है? ये जो आपने पंजाब की बात की, देखें वो अदालती हुकूमत है, वो नाजायज़ हुकूमत है, उसको इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन ख़त्म होना है, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां कॉल दे दी गई है, क्या आप लोग पावर के जरिए उनको रोकेंगे या फिर कोई डायलॉग या फिर मुज़ाकरात के जरिए मामलात को टैकल डाउन करने की कोशिश करेंगे? देखिए लॉन्ग मार्च हमने भी किए, बाकी जमातों ने भी किए। मैं जमहूरियत की हामी हूँ, मैं जमहूरियत में जमहूरी राय का एहतराम करती हूँ, लेकिन ये बात जमहूरी जमातों की है और ये जमहूरी लीडरान के लिए। जो इंसान जत्थे लेकर आ जाए और कभी वो कहे कि प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से निकालो, वालों की हड्डियां तोड़ दे, और फिर जनरल राहील शरीफ से मुलाकात करने रात के अंधेरे में हंसता हंसता निकल जाए, और उसके बाद वो जब कहे कि मैं इलेक्शन की डेट लेने आ रहा हूँ तो पूरे इस्लामाबाद को नजर आतिश कर दे और जो इमलाक हैं उनको नजर आतिश कर दे और जत्थे लेकर हमला आवर हो कि मेरी बात अगर नहीं मानी तो मैं आग लगा दूंगा। मैं इसको ना जमहूरी जमात की रवैया समझती हूँ, ना जमहूरी लीडर समझती हूँ। उनको लॉन्ग मार्च की ज़रूरत थी, कुछ थी, तरीके होते हैं, आप धमकाने के लिए नहीं कर सकते। और फिर सारा जो नैरेटिव दिया था उन्होंने कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, मुझे अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, आज उन्हीं लोगों को बुला के उनसे मिल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि मेरे दोबारा से जो है वो बहाल कराओ। तो किधर गई वो साजिश जिसके नतीजे में हमने ये इनकलाब देखा था, गुलामी की जंजीरों से आज़ादी, इनकलाब लेके आ रहा हूँ, तो वो इनकलाब तो राना सनाउल्लाह के डर से निकला ही नहीं। एक सेकंड और उसके बाद अब आप देखें वो चलता हुआ वहां से कि मेरे खिलाफ खत आ गया, साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी, इंपोर्टेड हुकूमत आ गई, ये हो गया, साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी, इंपोर्टेड हुकूमत आ गई, ये हो गया। और अब क्या बात है, अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे आके सारी बात रुक गई कि मेरे पसंद का चीफ अपॉइंट करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है वो मिलाइन कर दूंगा, उनके चेहरे स्याह कर दूंगा। ये रवैया एक जमहूरी इंसान का रवैया है। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि ये कोई जमहूरी इंसान का रवैया है कि मेरे पसंद की अगर बंदा नहीं आया तो मैं सबके चेहरे दागदार कर दूंगा। उनमें से ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां कुर्बान की हैं, दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, इस ओहदे तक पहुंचे। तो बात ये, और ये जो कि नवाज शरीफ को नहीं अपॉइंट करना चाहिए, जरदारी को अपॉइंट नहीं करना चाहिए, चोर क्योंकि वो उनकी चोरी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो बात ये है कि अपनी भी इमरान खान साहब की चोरी, वो जो हीरों का हार था वो पकड़ी गई थी, तो असल में ये अपनी चोरियों को छुपाना चाहते हैं, बात और कुछ नहीं। वो याद है ना हीरों का हार जो चोरी हुआ था, तो ये सब जो है ना, ये सब ये ड्रामा है और ये पूरी दुनिया जानती है भाई। इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात होनी चाहिए थी, लॉन्ग मार्च के इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात। भाई मैंने तो यही बात की, मैंने तो बिल्कुल यही बात की है कि जो मुलाकात की है रात के अंधेरों में अगर की है तो बताओ ना कौम को, अपनी जमात को बताओ, अपनी को कमेटी को बताओ कि मैं किससे मुलाकात करके आया हूँ। तुम बताते हो अपने लोगों को जो वो तुम्हें बताएं। राना शमीम के जब वो आया था एफिडेविट, तब आपने कहा था कि ये मैं बता रही हूँ जी। आप शमीम के हवाले से आज जब आपका एफिडेविट वाला मामला आया था, सारा कुछ आया था, तो आपने यहीं पे खड़े होकर कहा था ये कुदरत का कानून है, फतह हुई है, सच की फतह हुई है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आपको अपना माफी मांग लिया, वापस ले लिया, इस पर क्या कहें? देखिए उन्होंने जो भी किया मुझे नहीं पता उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, लेकिन एक राना शमीम की गवाही नहीं है उसमें गवाहियों के अंबार लगे हुए हैं। उसमें जो वफात पा गए हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, जज अरशद मलिक से लेकर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, उन्होंने वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, वो सब कुछ की वीडियोस बनी हुई हैं, लोगों ने देखी हैं, सुनी हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो उन्होंने लाइव किए थे लोगों के सामने, दुनिया ने सुने। तो आप किस की गवाही को जुटलाएंगे? और जिस तरह ये नैब ने फरार इख्तियार किया है मेरे केस में,
अभी नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे, उनके केस में भी दूध का दूध पानी का पानी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इंसाफ की जीत होके रहनी है। लेकिन फिलहाल जो मेरे केस में नैब की ने जो फरार इख्तियार किया, उसका मतलब यही है कि जो कुछ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने फरमाया था, जो जज अरशद मलिक ने कहा, जो राना शमीम साहब ने कहा कि वो हू बहू सच है, 100% सच है, उसको कोई जुटला नहीं सकता। वरना अगर कोई सबूत है तो सामने रख। इमरान खान अब भी लाडले हैं, आप कहते थे कि इमरान खान लाडला है, अभी रात को मिस्टर एक्स वाई पहुंचने लगा, अब भी लाडले हैं वो किसी के। और वो मैं एक बात बता दूं, वो जिसके लाडले हैं ना, वो इमरान खान को लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते हैं। एक मिनट, मुझे उनका सवाल लेने दें। आपने महंगाई मार के ऊपर बताना था, इसमें उन्होंने इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ औकात में जो बातें मजहब के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरानी आयात के हवाले से की, वो दिखाई। उसके बाद हमने देखा कि, और उन्होंने कहा कि अगर आपने बात करनी होती है तो या तो आप पढ़ के आया करें या आप इस पर बात ना किया करें। उसके बाद उनके खिलाफ पंजाब में भी दहशतगर्दी की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आज केपी में भी दर्ज कर लिया गया। तो मैम ये बताएं कि वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की इस हवाले से क्या पॉलिसी है? मुझे वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी का उस पर मैं बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी और मैं सारी कौम की बात करूँगी। बात यह है कि बजाय इसके कि जावेद लतीफ़ साहब पे मुकदमा बने या बाकियों पे बने, आप अपनी बात तो देखें, आप कह रहे हैं। आप कभी कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह से मैं कौम को आज़ाद करूँगा, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से लोगों को आज़ाद करूँगा। ये आप किस किस्म की ज़बान बोल रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि 1,40,000 पैगम्बर आए हैं दुनिया में, कभी आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अपनी सियासी जिद्दोजहद में निकाल लेते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देने के लिए नबूवत दी थी, इसी तरह मेरी जिम्मेदारी। आप क्या बातें करते हैं? ये आप क्या ऑल फॉल बक रहे हैं? आपको अंदाज़ा भी है या आपकी मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि आपको ये पता नहीं है? और अगर स्लिप ऑफ टंग भी है तो फिर भी आपको शर्म आनी चाहिए। एक इंसान जो अवाम से खिताब कर रहा है, अवाम के जहनों में अपनी बात डाल रहा है, उसको 10 दफ़ा रिहर्स करके, ख़ास तौर पर जब मज़हब का मामला आए तो 10 दफ़ा सोच के एक बात कहनी चाहिए। फिर आप स्लिप ऑफ टंग कह के भाग नहीं सकते। तो ये इजाज़त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ खान साहब को है कि वो जो चाहे कुफर बकें, ऑल फॉल बकें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और उस पर इतराज़ उठाने वाले को सज़ा मिलती है या उस पर मुकदमा दर्ज होता है। मैडम एक खातून सहाफ़ी फौजिया शाहिद के घर में आज डकैती पड़ी है रात को, उन पर तशद्दुद भी किया गया है मीडिया टाउन में। उसके हवाले से हम चाहेंगे कि आप अपने पार्टी की तरफ से भी कोई मौक़िफ़ ज़रूर दें। मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। मैं राना सनाउल्लाह साहब से अभी कहूँगी गाड़ी में बैठ के कि इस केस को टेकअप करें और देखिए कि ऐसा क्यों हुआ। की परफॉर्मेंस की बात करें, डॉलर ट्रेड करे 240 पे, 3700 रुपए मन गंदम हो गई है, लोगों को रिलीफ देना है, आप इसलिए आए हैं, दोबारा इलेक्शन भी आ रहे हैं, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी इस चीज़ पे कॉम्प्रिहेंसिवली बात कर चुकी हूँ। मैं उनको बिल्कुल इस चीज़ में एग्जॉनरेट नहीं करती कि बिजली के बिलों में जो इजाफा हुआ है वो आवाम की कुव्वत से बाहर है, उस पर आवाम को बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है और पड़ रहा है महंगाई की वजह। लेकिन महंगाई की वजह शहबाज शरीफ साहब नहीं, महंगाई की वजह वो IMF का मुआहदा और इमरान खान की 4 साल की नालायकी और नाअहली है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी आजकल जो है वो इस पोजीशन में है कि उसको ठीक करने की कोशिश के बावजूद भी अभी वो ठीक नहीं हो सक रही। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 4 साल की नाअहली और नालायकी, इसके दूरस्त नताइज होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला संभल जाएगी। लेकिन इसका जो जिम्मेदार है, इसका जो मुजरिम है, उसका नाम है इमरान खान। शुक्रिया, थैंक यू।